Hello everyone. Hope everyone doing well. Welcome to my YouTube channel Maths by पीयूष तिवारी सिंह। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रिग्रेशन एनालिसिस इस लेक्चर में करेंगे। आज हम रिग्रेशन एनालिसिस का लास्ट मिनट रिवीजन, जो कि महा रिवीजन है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रिग्रेशन एनालिसिस के ऑल फॉर्मूलेज, ऑल इंपॉर्टेंट सम्स जो कि 3 to 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ये सारे सम्स हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सो आप रेडी हो जाइए चैप्टर के रिवीजन के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बी रेडी फॉर रिग्रेशन एनालिसिस महा रिवीजन। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इंट्रोडक्शन पार्ट। व्हाट इज रिग्रेशन का मतलब? रिग्रेशन इज द एवरेज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को रिग्रेशन बोलते हैं। द वर्ड रिग्रेशन इंप्लाइज एस्टिमेशन ऑफ प्रिडिक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू पर्पस। रिग्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ प्रिडिक्शन। जो हम प्रिडिक्शन करते हैं उसके एस्टिमेशन ही रिग्रेशन कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, थ्रू रिग्रेशन इक्वेशन वी can quantify the relationship between two variables, and we can predict the average value of one variable corresponding to a specific value of other. So आप इसे अच्छे से गो थ्रू कर लें, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प मिलेगा। It establish a functional relationship between two variables. Regression equation enable us to find the nature and the extent of relationship between two variables. Correlation can measure only the degree of association between two variables, whereas regression quantifies such relationship. The two variables are dependent and independent variable. Thus, we try to estimate the average value of dependent variable for a specified value of independent variable using regression analysis. If there are two variables, then the independent variable is called as regressor or explaining variable. This point is very important for objective purpose. The dependent variable is called as regressed or explained variable. Regression analysis is an absolute measure showing a change in the value of y or x for a corresponding unit change in the value of x or y, whereas the correlation coefficient is relative measure of linear relationship between x and y. Average linear relationship between two variables is expressed by means of two straight line equation known as regression lines or regression equations. If there are two variable x and y, we can have the following two types of regression line. Regression equation y on x, जिसमें y को डिपेंडेंट बोलते हैं और x को इंडिपेंडेंट, और दूसरा होता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, जिसमें x डिपेंडेंट होता है और y इंडिपेंडेंट. So this is the basic idea about regression analysis. Now, regarding formulas, these are the abbreviation मतलब short forms. Regression coefficient denoted by bxy, byx. bxy होता है regression coefficient on x on y. byx regression coefficient y on x. Mean of x and y. Mean का मतलब होता है x bar y bar. Standard deviation denoted by sigma at x, sigma at y. Covariance COV bracket में x comma y. Correlation coefficient small r. Now, the regression coefficient formula byx और bxy. My dear students, आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर ले और रिवाइज कर ले. All these are the different format of byx. ये byx के different formats हैं. According to question, we will take decision कि हमें कौन सा format use करना है. Now, after this, regression equation. There are two types of regression equation: regression equation y on x and regression equation x on y. This is the formula of covariance and this is the formula for standard deviation. Now, correlation coefficient denoted by small r. This is r square का formula and this is r का formula. These are the few important note. Go through it. Now, shift of origin and scale. जब डेटा हमारा वेरी लार्ज होता है, बहुत बड़ा डेटा होता है, तो हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड यूज करते हैं. रीड इट एंड गो थ्रू इट. नाउ, यू एंड वी, दिस इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पार्ट बी. तो ये मैंने रिग्रेशन के सारे फॉर्मूलेज आपको बता दिए. Now, regression equation of y on x and regression equation of x on y. These are the distinguish between them. इन दोनों के बीच में क्या distinguish है, क्या important points है, आप एक बार read कर लो. Okay. So these are the important points. Just read it. Okay. Since it is a revision lecture, तो मैं इसे in detail explain नहीं करूंगा. इसके लिए आप regression analysis के playlist में जाके regression chapter को go through कर लो. Now,
कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मैंने ऑलरेडी इसके पहले फॉर्मूला लिस्ट में हैंड रिटन दिखाया था और ये आपको टाइप्ड है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो। ना, properties of regression coefficient, just go through it. These are the important properties. Byx is nothing but a slope, इसी को हम slope भी बोलते हैं, slope of regression line y on x. Similarly bxy, slope of regression line x on y. Correlation coefficient is symmetric. If rxy is equal to ryx, then it is symmetric. When r is 0, both regression coefficients are 0. Both regression coefficients will have the same sign, and this is the formula for r. These are the properties. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होगा तो आर पॉजिटिव आएगा, और इफ बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों निगेटिव होगा तो आर निगेटिव आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऐसा नहीं होगा कि बी वाई एक्स पॉजिटिव हो और बी एक्स वाई निगेटिव हो, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो आपने कुछ मिस्टेक किया है क्वेश्चन से। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रीड इट एंड गो थ्रू इट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? ये आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। The angle between two regression lines become 90 degree. 90 degree कब होगा my dear students? That is they are perpendicular to each other. When r is plus minus 1, then two regression lines become identical. And these are the few important points regarding it. And these are the few important points. आप इसे go through कर लो। So मेरे my dear students, till here यहाँ तक मैंने आपको regression analysis chapter के theory concept को गो थ्रू करवा दिया है। आप ये सारी चीजें होप दैट अच्छे से पढ़ लिए होंगे। डोंट स्किप दिस पार्ट बिकॉज दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y एंड y ऑन x। यहाँ पे दो चीजें पूछा गया है, x ऑन y एंड y ऑन x। नाउ व्हाट इज द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y? रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y इज x on y. What is the regression equation x on y? That is x minus x bar is equal to bxy, y minus y bar. So my dear students, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें x बार निकालना पड़ेगा, y बार निकालना पड़ेगा और bxy, ये 3 पॉइंट्स। ओके, नाउ व्हाट इज द bxy का फॉर्मूला? तो यहाँ पे हमने आपको bxy का फॉर्मूला दिया है। And what is the formula for x bar and y bar? So we know that x bar is equal to summation x upon n and y bar is equal to summation y upon n. So this is the formula for x bar, this is the formula for y bar, and this is the formula for bxy. Now bxy के कैलकुलेशन में आप देख सकते हो x into y का टोटल चाहिए, x into y का टोटल चाहिए, और बी वाई एक्स के फॉर्मूले में भी हमें x into y का टोटल चाहिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बी एक्स वाई में y स्क्वायर का टोटल चाहिए और बी वाई एक्स में x स्क्वायर का टोटल चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टेबल बनाएंगे। जब आप टेबल बनाओगे तो आपको पहला कॉलम x और दूसरा कॉलम y ऑलरेडी गिवन है। सो हम लोग क्या क्या कॉलम्स ऐड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? हम लोग क्या ऐड करेंगे? चलो फटाफट। हम लोग सबसे पहले एक्स का टोटल निकाल लेंगे जो हमें गिवन था, तो एक्स का टोटल निकालेंगे, वाई का टोटल निकालेंगे। एक्स का टोटल आया 70, वाई का टोटल आ गया 40। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड एक्स स्क्वायर, वी आर गोइंग टू फाइंड वाई स्क्वायर एंड वी आर गोइंग टू फाइंड एक्स इंटू वाई। तो एक्स का टोटल 70 आया, वाई का टोटल 40 आया, एक्स स्क्वायर का टोटल 1026 आया, वाई स्क्वायर का टोटल 360 एंड एक्स वाई का टोटल 600। होप दैट आपको ये निकालने आता होगा। व्हाट इज एक्स स्क्वायर? ये एक्स है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 एंड सो ऑन। नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड वाई का स्क्वायर। y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। नाउ आफ्टर दैट x इंटू वाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 इंटू 5 दैट इज 50, 12 6 72 and so on. So this is a way we have to find x square, y square and x into y. After that we are going to find the total. Now what is the first point? सबसे पहले हम लोग x bar कैलकुलेट करेंगे, y bar कैलकुलेट करेंगे। Now what is x bar? x bar is formula summation x upon n। तो ये हो गया आपका summation x, that is 70। What is n? n is number of observation, 1 2 3 4 5। So there are 5 observations, so x bar is summation x upon n, that is 70 upon 5, that is 14। y bar summation y upon n, summation y आपका 40 है, तो 40 upon 5 that is 8। ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट जो आपको कैलकुलेट करना है।
अब उसे उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स ऑन वाई के लिए आपको बी एक्स वाई चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, बी एक्स वाई का ये फॉर्मूला है। व्हाट इज बी एक्स वाई? दिस इज द फॉर्मूला, रिमेंबर द फॉर्मूला, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट समेशन एक्स वाई आपका 600 है, आप देख सकते हैं ये हो गया समेशन एक्स वाई। व्हाट इज एन? एन इज 5। व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 14। उसके बाद व्हाट इज वाई बार? वाई बार हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 8। ये हो गया आपका न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर समेशन वाई स्क्वायर का टोटल कितना आया है, दैट इज 360। सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 360 माइनस एन दैट इज 5, वाई बार का स्क्वायर, व्हाट इज वाई बार? दैट इज 8, तो 8 का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट बी एक्स वाई इज 1। सिमिलरली आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का फॉर्मूले का न्यूमरेटर सेम होता है, न्यूमरेटर पार्ट इज ऑलवेज सेम। देखो ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है, न्यूमरेटर पार्ट सेम होता है। डिनोमिनेटर पार्ट में बी एक्स वाई में डिनोमिनेटर y के टर्म्स में होगा और बी वाई एक्स में डिनोमिनेटर x के टर्म्स में होगा, याद रखिएगा। बी एक्स वाई में डिनोमिनेटर y के टर्म्स में होगा और बी वाई एक्स में डिनोमिनेटर x के टर्म्स में फॉर्मूला होगा। सो आप सिमिलरली बी वाई एक्स कैलकुलेट करो, यू विल गेट बी वाई एक्स इज 0.87। सो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको एक्स बार निकालना है, वाई बार निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेप में आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, दैट इज बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री, regression equation x on y. What is the regression equation x on y? That is x minus x bar is equal to bxy y minus y bar. So x minus, what is x bar? x bar क्या है? तो x bar की वैल्यू है 14, तो x minus 14 is equal to what is bxy? bxy कैलकुलेट किया था हमने, कितना आया था bxy? bxy आया था 1, this is bxy, so 1 y minus, what is y bar? Y bar is 8. So we get x minus 14 is y minus 8. My dear student, जब भी आपको रिग्रेशन इक्वेशन x on y बोले तो रिग्रेशन इक्वेशन x on y आपको x इक्वल टू के फॉर्म में लाना है। तो व्हाट इज x इक्वल टू? x इज इक्वल टू y minus 8 plus 14. So what is x? x is equal to y plus 6. This is the regression equation x on y. और आप इसी को x माइनस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो। सो यू विल स्टॉप योर आंसर हियर, और x माइनस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। बट रिमेंबर इट, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, x इक्वल टू वाई प्लस सिक्स। x इक्वल टू के फॉर्म में आपको रखना है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ स्टेप फोर, रिग्रेशन इक्वेशन y on x. The formula is y minus y bar is equal to byx, x minus x bar. So we get y minus, what is y bar? Y bar हमने कैलकुलेट किया है, that is 8. byx, that is 0.87. या आप 40/46 पे भी छोड़ सकते हो, if you want you can take keep it in the fraction form. x minus, what is x bar? x bar हमने कैलकुलेट किया था, that is 14. सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसे कट करेंगे 2 से, तो यू विल गेट 20, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23. So 23 times y minus 8 is 20 times x minus 14. Now open the bracket, come on, आप सब लोग सॉल्व करो माय डियर स्टूडेंट्स, और आप कमेंट बॉक्स में लिखना चालू करो कि क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ, फटाफट बताओ, चलो स्टार्ट एवरीवन। 23y, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 23y minus 23 multiplied by 8, that is 184, is equal to 20x minus 280. Okay, so finally we get 23y minus 20x, or 20x, ये 20x को ये साइड ले लो, is equal to, ये माइनस 184 वो साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 184 minus 280. So we get 23y
-20x is equal to 184 minus 280, that is -96. सो आपको क्या करना है, आपको y इक्वल टू के फॉर्म में रखना है। तो 23y इज इक्वल टू 20x minus 96. So what is y? Y is 20 upon 23x minus 96 by 23. So what is y? Y equal to 20 upon 23x minus, अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 नहीं 23, ओके। 3 से 20, 3 के टेबल में 23 नहीं आता, तो 96 डिवाइड बाय 23 करोगे, सो यू विल, आप ये फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, क्योंकि 96 से 23 भी डिवाइड नहीं होगा। इज दिस क्लियर? तो आप फ्रैक्शन में छोड़ दो, और अगर अदरवाइज अगर आपको डेसिमल में लाना है तो आप डेसिमल में भी ला सकते हो। तो 20 डिवाइड बाय 23 करोगे, यू विल गेट 0.87 एक्स माइनस, टू डिजिट तक ही करना है माय डियर स्टूडेंट। 96 डिवाइड बाय 23, दैट इज 4.17। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा, बी वाई एक्स अगर बोलेगा तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म वाई इक्वल टू होता है, और बी एक्स वाई बोलेगा तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स इक्वल टू होता है। सो होप दैट आपको ये फर्स्ट सम अच्छे से समझ में आया होगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, ये डेटा का जो साइज है वो लार्ज हो गया, बड़ा बड़ा नंबर है। इज दिस क्लियर? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में भी सेम था, बट हमारा एक्स और वाई की वैल्यू बहुत स्मॉल थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा एक्स और वाई ग्रेटर है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर। एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर को उन्होंने एक्स से डिनोट किया है, एंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्स को उन्होंने वाई से रिलेट किया है। 10 वर्कर्स, 10 वर्कर ये हमारा एन हो गया, ठीक है। ऑप्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन। टू रिग्रेशन इक्वेशन मतलब हमें क्या क्या ऑप्टेन करना है? हमें फाइंड आउट करना है एक्स ऑन वाई, और दूसरा फाइंड आउट करना है हमें वाई ऑन एक्स। एस्टिमेट द प्रोडक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? ध्यान से पढ़िए। प्रोडक्टिव इंडेक्स का मतलब वाई, तो एस्टिमेट हमें करना है वाई, मतलब वाई को फाइंड आउट करना है, कुछ समान ऑफ अ वर्कर हुज टेस्ट स्कोर इज 95। टेस्ट स्कोर इज 95 मतलब आपको टेस्ट स्कोर का मतलब क्या हुआ? एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, दैट इज एक्स, एक्स इक्वल टू 95। तो व्हेन एक्स इज 95, व्हाट इज वाई? ऐसा क्वेश्चन है। मतलब ये टेबल आप देख सकते हो, ये एक्स है ना, एक्स के एक एंट्रीज है ना, तो ऐसा पूछा गया कि अगर एक्स 95 होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी। होप दैट आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा गया मेरे माय डियर स्टूडेंट्स? पहला आपको एक्स ऑन वाई पूछा गया है, दूसरा वाई ऑन एक्स पूछा गया, और थर्ड पार्ट में आपको एक्स की वैल्यू दिया है और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी एक्स की वैल्यू गिवन हो और वाई फाइंड आउट करना हो, हमें वाई फाइंड आउट करना है तो वी यूज वाई ऑन एक्स। जब भी हमें वाई फाइंड करना होगा, टू फाइंड वाई वी यूज वाई ऑन एक्स, ठीक है। जब भी y फाइंड करना होगा y ऑन x यूज करना है, और जब भी x फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा x ऑन y यूज करना है। सो लेट अस सी। तो सबसे पहले हमें x ऑन y और y ऑन x निकालना होगा, बट यहाँ पे आपका डेटा बहुत बड़ा नंबर है, तो इस बड़े नंबर को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट? स्मॉल नंबर में। कैसे करेंगे? लेट अस सी। तो आपका पहला कॉलम हो गया x, दूसरा कॉलम आपका हो गया y। तो हम लोग टेबल बनाएंगे। सबसे फर्स्ट कॉलम में हमारी एंट्री आ जाएगी x, सेकंड कॉलम की एंट्री आ जाएगी y। चलो ध्यान से देखना, ये x हो गया, ये आपका y हो गया। इज दिस क्लियर? लास्ट में आपका टोटल आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम में आपको टेबल बनाना नेसेसरी है ना। एक्स और वाई के बाद आपको क्या करना है? आपको इस नंबर को स्मॉल करना है। तो आप नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार, नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे वाई माइनस वाई बार, फिर नेक्स्ट कॉलम आपका आता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट कॉलम आता है वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, लास्ट कॉलम आएगा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो व्हाट इज एक्स बार? यहाँ पे एक्स बार आपका है मीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करेंगे। नाउ व्हाट इज एक्स बार? वी नो दैट एक्स बार इज समेशन एक्स अपॉन एन, एंड वाई बार इज समेशन वाई अपॉन एन। सो व्हाट इज समेशन एक्स? एक्स का टोटल आ गया, ये टोटल है आपका। एक्स का टोटल 650, वाई का भी टोटल 650, और एन क्या है? एन तो 10 था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप,
आपने एक्स बार निकाला 650/10, वाई बार निकाला 650/10। तो हमें आंसर कितना आया? हमें आ गया एक्स बार इज 65 एंड वाई बार इक्वल टू 65 ना। उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये आपका कैसा बन जाएगा क्वेश्चन? आपका बन जाएगा कॉलम्स एक्स आई माइनस 65, और सिमिलरली ये आपका हो जाएगा वाई आई माइनस 65। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स आई कितना है? 60। तो ये एंट्री कैसे मिलेगी? 60 माइनस 65। तो 60 माइनस 65 क्या होगा? -5। तो आपकी फर्स्ट एंट्री आ जाएगी -5। 62 -65। फिर क्या करेंगे? 65 -65। फिर 70 -65। फिर 72 -65। नाउ देखो, 62 -65 दैट इज -3, 65 -65 0, 70 -65 5, 72 -65 7, एंड सो ऑन। इस तरह आप ये फटाफट फटाफट क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट्स? कैलकुलेट करोगे। इज दिस क्लियर? नाउ हाउ टू कैलकुलेट वाई आई माइनस वाई बार? तो वाई आई कितना है? 68। आपका आएगा 68 माइनस 65। फिर नेक्स्ट 60 माइनस 65, नेक्स्ट 62 माइनस 65। तो सो ऑन। 68 में से 65 गया 3, 60 माइनस 65 -5, 62 माइनस 65 -3, एंड सो ऑन। इसी तरह आप सारे के सारे वैल्यूज एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार के कैलकुलेट कर लोगे। नाउ नेक्स्ट इज एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो -5 का होल स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, एंड सो ऑन। नाउ आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप क्या करोगे? वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, एंड सो ऑन। Now after that xi minus x bar into yi minus y bar, that means ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई कैसे करोगे? -5 into 3 -15, -3 into -5 15, 0 into -3 0, 5 into 15 75, and so on. So hope that my dear students आपको ये टेबल समझ में आया होगा कैसे बनाएंगे। फिर हम लोग ने ये सारे टोटल्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ स्टेप टू, आपको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और बी एक्स वाई का फॉर्मूला है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। नाउ इस टेबल में जो यूज होंगी वो वैल्यूज हमने टेबल से कैलकुलेट कर ली है। नाउ व्हाट इज बी वाई एक्स? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, जिसका टोटल कितना है माय डियर स्टूडेंट? 1044। तो 1044 डिवाइड बाय 894, तो वी गेट 1.16। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इमीडिएट आप क्या करो? इमीडिएट आप रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट कर लो y on x. Now what is regression equation y on x? Y minus y bar is equal to byx x minus x bar. So y minus what is y bar? Y bar हमने कैलकुलेट किया, कितना आया? 65। तो y minus 65 is equal to what is byx? 1.16 xi minus 65. Okay, open the bracket. Y minus 65 is equal to 1.16x. चलो एवरीवन, 1.16 मल्टीप्लाई बाय 65, फटाफट करके बताओ मुझे कितना आएगा? 1.16 मल्टीप्लाई बाय 65, 75.4। वेरी गुड, 75.4। तो बी वाई एक्स का इक्वेशन हम हमेशा y इक्वल टू के फॉर्म में लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो y इज इक्वल टू 1.16x माइनस 75.4 प्लस 65। ओके, सो फटक से आप बताओ कितना आएगा? y इज इक्वल टू 1.16x माइनस 75.4 प्लस 65, दैट इज माइनस 10 पॉइंट कितना आ जाएगा? 75.4 में से 65 गया, -10.4। यस, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन y on x। नाउ अनदर हैंड, चलो अब दूसरे साइड में चलते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? बी एक्स वाई। हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे।
bxy. What is bxy? समेशन xi माइनस, अगर आप xi नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, xi माइनस x बार y I माइनस y बार अपॉन समेशन y I माइनस y बार का होल स्क्वायर. Now, which is equal to, what is summation xi minus x bar into yi minus y bar? That is same 1044 divided by, what is yi minus y bar? 1752. Now divide कर दो. So 1044 divided by 1752. That is 0.59. 0.59. ये आ गया आपका bxy. Now what we will calculate? We will calculate regression equation x on y. What is the formula? Regression equation x on y. X minus x bar is equal to bxy y minus y bar. So x minus, what is x bar? 65. bxy 0.59 bracket y minus 65. So carefully calculate करिए आप. We get x minus 65 is equal to 0.59 y minus. Now 0.59 multiplied by 65. 38.35. 38.35. So what is x? X is equal to 0.59 y minus 38.35 plus 65. So what is x? X is 0.59 y. चलो, my dear student, 38.35 65 में से माइनस कर दो, तो we get प्लस 65 में से 38.35 माइनस कर दो, सो वी गेट प्लस 26.65. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y. x ऑन y का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x इक्वल टू, और y ऑन x का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इक्वल टू. ना ये हो गया आपका स्टेप 3. इट इज 4 मार्क्स प्रॉब्लम. ठीक है, ये आपका स्टेप 3 था, जिसमें आपने रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकाला और रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y निकाला ना. अब क्वेश्चन में क्या पूछा, तो देखो हमने x ऑन y कैलकुलेट कर लिया, हमने y ऑन x भी कैलकुलेट कर लिया. नाउ द लास्ट पार्ट, हमें y फाइंड आउट करना है और x की वैल्यू दी है 95. तो चलो नीचे आ जाओ. स्टेप 4. स्टेप 4, y कैलकुलेट करना है और x की वैल्यू दी है, कितना दी है? 95. सो माय डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 95 दी है, y कैलकुलेट करना है. तो दोनों में बताओ, y फाइंड आउट करना है तो y इक्वल टू में डालोगी कि x इक्वल टू में? वेरी गुड, हम लोग कहाँ डालेंगे? y इज इक्वल टू में डालेंगे. तो ये y इज इक्वल टू मतलब कौन सा फॉर्मेट है? y ऑन x है. तो रिमेंबर इट, जब भी हमें y फाइंड आउट करना होगा, आपका रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से आएगा. सो लिखने का, फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ऐसा आपको हेडिंग डालना है. नाउ क्या आया था आपका? y इज इक्वल टू 1.16x माइनस 10.4. इधर x के जगह पे आप 95 डालो, तो 1.16 मल्टीप्लाई बाय 95 माइनस 10.4 विच इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा? कम ऑन, 1.16 मल्टीप्लाई बाय 95, दैट इज 110.2 माइनस 10.4 माइनस 10.4, that is 99.8. 99.8, ये आ गया हमें y की वैल्यू. सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था फाइनली? ध्यान से पढ़िएगा. क्वेश्चन में पूछा था, ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन, हमने कर लिया. एस्टिमेट द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ अ वर्कर whose टेस्ट स्कोर इज 95. So what is the productivity index of a worker? The productivity index of a worker is 99.8. सो लास्ट में आपको वर्ड प्रॉब्लम है तो आपका आंसर वर्ड स्टेटमेंट में लिखना है. द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ अ वर्कर
is 99.8 फुल स्टॉप। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो हमने टू प्रॉब्लम्स किए, वन प्रॉब्लम में डेटा छोटे छोटे नंबर थे और सेकंड प्रॉब्लम में डेटा लार्ज नंबर थे। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। अगेन माय डियर स्टूडेंट ये सारे सम 4 मार्क्स के, इसमें देख सकते हैं आप x क्या है, x स्मॉल नंबर है और y लार्ज नंबर है। अगर ऐसा एग्जाम में आया तो आप कंफ्यूज होते कि हम क्या करें। तो सेम तरीके से जाओ, यहाँ पे x ले लो, यहाँ y ले लो, एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन। अच्छा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मार्क्स, पहले मार्क्स तो आप कैसे करोगे, मार्क्स मार्क्स को किससे डिनोट किया गया, पढ़ो देखो यहाँ पे मार्क्स को वाई से लिखा गया है। तो आप क्वेश्चन में ऐसा लिखो मार्क्स को वाई से, और आवर, आवर ऑफ स्टडी को किससे रिलेट किया गया है, आवर ऑफ स्टडी को एक्स से। और बीच में कौन सा वर्ड लिखा है, ऑन। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको पूछा है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ये आपको पूछा है। ऐसा अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके पहले फाइंड आउट करो कि निकालना क्या है, y ऑन x पूछा है। अब उसके बाद आप क्या सोचोगे, उसके बाद आप y ऑन x के फॉर्मूला सोचोगे। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। अब उसके बाद आप क्या सोचोगे कि अब हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें बी वाई एक्स चाहिए, हमें वाई बार चाहिए, हमें एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन। वाई बार क्या होगा, समेशन वाई अपॉन एन। इज दिस क्लियर। एंड बी वाई एक्स क्या होगा, बी वाई एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। ये हो गया बी वाई एक्स। ये सारे फॉर्मूलेज लिख दिए। ऐसा लिखो एग्जाम में, ऐसा लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कौन कौन सा कॉलम बनाना है। अब क्या कॉलम बनाना है, आपको एक्स वाई का टोटल चाहिए, ओके, आपको एक्स स्क्वायर का टोटल चाहिए। इज दिस क्लियर। तो हमारे कॉलम में खाली दो कॉलम ऐड होंगे, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स वाई। इज दिस क्लियर। यहाँ पे आपको वाई स्क्वायर का कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। होप दैट आपको समझ में आया होगा कि हम टेबल कैसे याद रखें, मतलब टेबल कैसे बनाना है। तो टेबल आप बाद में बनाइए, क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन में यूज होने वाले फॉर्मूले का लिस्ट बनाइए, ओके। और जब फॉर्मूले का लिस्ट बन जाएगा फिर आप ये सोचिए कि इस फॉर्मूले में किसकी किसकी जरूरत है। उस फॉर्मूले में जिसका जरूरत है वो आपका कॉलम बन जाएगा, वो आपका टेबल में आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन। कमेंट करना ना भूले, अगर समझ में आ रहा है तो यस सर डालिएगा कमेंट में, ओके। सो लेट अस कंटिन्यू। तो ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स इंटू वाई हो गया। बाद में आप उसका टोटल निकाल लो। टोटल निकालने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स बार आप कैलकुलेट करो, वाई बार कैलकुलेट करो, दैट इज स्टेप 1। ये हमने सम नंबर 1 में यही मेथड यूज किया था। स्टेप 2 में आप बी वाई एक्स कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद आपका आता है स्टेप 3। बी वाई एक्स कैलकुलेट करने के बाद हम लोग स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 आपका क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3 इज रिग्रेशन इक्वेशन y on x. Now what is y on x? Y minus y bar is equal to byx, x minus x bar. So y minus, what is y bar? 70.83. What is byx, my dear student? That is 6.6. X minus, what is x bar? 4.92. Is this clear? So y minus 70.83 is equal to 6.6x minus, okay, now 6.6 multiplied by 4.92, 6.6 multiplied by 4.92, that is 32.47. So my dear students, y minus 70.83, ओके, 70.83 को हम क्या करेंगे, राइट साइड में ले लेंगे, ओके। सो वी गेट y इज इक्वल टू 6.6x minus 32.47 plus 70.83. So y is equal to 6.6x 70.83 minus 32.47.
38.36, 38.36, so plus 38.36। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। जब भी y ऑन x पूछेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको y इक्वल टू के फॉर्म में रखना है। सो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। सो इट इज 4 मार्क्स प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स। इज दिस क्लियर? तो आपको टेबल पे 1 मार्क, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 पे 1 1 1 मार्क्स, सो इट इज अ 4 मार्क्स प्रॉब्लम। इसका ऑल्टरनेट मेथड भी है माय डियर स्टूडेंट्स। ऑल्टरनेट मेथड क्या है? आप ऑल्टरनेट मेथड से अगर इस सम को सॉल्व करोगे, सो देखो यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेट मेथड सॉल्व करके दिया है। ये सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वी कंप्लीटेड दिस सम हियर। नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर। नाउ व्हाट इज द अल्टरनेट मेथड? कुछ बच्चे ये मेथड से भी एग्जाम में कर सकते हैं। दिस इज अल्टरनेट, दैट इज स्टेप 3। स्टेप 1 स्टेप 2 आपको करना है। स्टेप 3 का अल्टरनेट मेथड है। आप इस तरह से जाओ या आप इस तरीके से जा सकते हो। कैसे? आप इसको बोलते हैं लिस्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? लिस्ट स्क्वायर मेथड। अगर आप माय डियर स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, y इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, तो दिस इज कॉल्ड एज लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले a इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार होगा। फिर ये बी वाई एक्स आप पुट करेंगे, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ए मिल जाएगा 38.36। और बाद में y इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, दैट इज ए की वैल्यू 38.36 प्लस 6.6 एक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, आप चाहे लीस्ट स्क्वायर मेथड से करो या स्टैंडर्ड फॉर्म से करो, दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। पर दोनों मेथड में केवल स्टेप 3 डिफरेंट है। कौन सा स्टेप डिफरेंस डिफरेंट है? स्टेप 3। स्टेप 1 और स्टेप 2 आपका सेम है। होप दैट आपको ये सब समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि डेटा बेस्ड है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको एक्स बार दिया है, आपको वाई बार दिया है। इस बार आपको समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर का वैल्यू दिया है, समेशन वाई आई माइनस वाई बार के स्क्वायर का वैल्यू दिया है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का वैल्यू भी दिया है। और क्वेश्चन में यहाँ 20 पेयर बोला है, जो कि आपका एन हो गया 20। ये डेटा दिया है और आपको पूछा गया लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। व्हाट इज लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x माय डियर स्टूडेंट? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, y ऑन x मतलब y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, x माइनस x बार। x ऑन y का फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस x बार बी एक्स वाई, y माइनस y बार। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आपको स्मॉल r। ये 3 चीजें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एक्स बार देख सकते हैं, आपको एक्स बार ऑलरेडी है, वाई बार भी है। ओके ना, बी वाई एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस समय हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे आप बी एक्स वाई कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो लेट अस सी सॉल्यूशन। व्हाट इज बी वाई एक्स का फॉर्मूला? आप देख सकते हैं, यह है बी वाई एक्स का फॉर्मूला, जो मैंने ऑलरेडी यूज किया था सम नंबर 2 में आज ही के रिवीजन लेक्चर में। तो ये बी वाई एक्स का फॉर्मूला हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं। तो summation xi minus x bar, that is minus 250 upon 1200. So you will get by(x) is minus 5 by 24. Then regression equation y on x, y minus y bar equal to by(x), x minus x bar substitute करेंगे, you will get 5x plus 24y equal to 3251। और my dear students, y on x है तो आप इसे y equal to के फॉर्म में भी लाके छोड़ सकते हैं। That is 24y is 3251 minus 5x. So y is equal to 3251 upon 24 minus 5 upon 24 x. So either you will stop your answer here or you can stop your answer here. दोनों आंसर करेक्ट है। नाउ सिमिलरली ये आप बी एक्स वाई का फॉर्मूला लगा के माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बी एक्स वाई मिल गया -5/6। फिर एक्स ऑन वाई, तो एक्स इक्वल टू के फॉर्म में ला सकते हैं आप। तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे 1664 माइनस 5y एंड एक्स इक्वल टू 1664 अपॉन 6 माइनस 5/6y। तो यू विल स्टॉप योर आंसर हियर और हियर, कहीं भी आप छोड़ सकते हो। नाउ ये सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट, व्हाट इज आर?
आर इज प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये बी वाई एक्स है, ये बी एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव हो गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 144 का 12, तो 5/12 हो गया। ये प्लस माइनस बाहर है ना, अभी प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो आप देख सकते हो हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों निगेटिव आया। कॉन्सेंट्रेट, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई हमें दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों निगेटिव आए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आर की वैल्यू आपको निगेटिव लेनी है और ये रीजन लिखना कंपलसरी है। कीप इन माइंड, अगर आप ये रीजन नहीं लिखते हो कि सिंस बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई बोथ आर नेगेटिव देयरफॉर आर इज नेगेटिव, इट इज कंपलसरी, रीजन कंपलसरी लिखना है, अदरवाइज मार्क्स चला जाएगा। देयरफॉर आर इक्वल टू -5/12। होप दैट आपको ये थर्ड सम और फोर्थ सम अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू सैंपल्स फ्रॉम बाइवेरिएट पॉपुलेशन हैव 15 ऑब्जर्वेशन, तो 15 ऑब्जर्वेशन का मतलब एन की वैल्यू हो गई 15। ओके, चलो आगे देखो। द सैंपल मीन ऑफ एक्स and y are 25 and 18. That means mean of x is 25, मतलब x bar हो गया 25. Okay. Now mean of y is 18, मतलब y bar हो गया 18. So y bar 18, x bar 25 and 15. Okay. Is it clear? The corresponding sum of squares. Sum का मतलब होता है my dear student summation, सम ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट, स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर्स। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, किसके बीच का डिफरेंस, ध्यान से पढ़ो, किसके किसके बीच का डिफरेंस, डेविएशन फ्रॉम 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 मीन। ओके, मतलब आपको ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर लेना है मीन से, मतलब आइदर यू विल राइट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर या समेशन एक्स बार माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, दोनों राइट है। आइदर आप ये फॉर्मेट लिखो या ये फॉर्मेट लिखो, दोनों राइट है। बट हम लोग पर वाला फॉर्मेट लिखेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूला लिस्ट में ये फॉर्मेट होता है। ओके, इसके लिए हम लोग ऐसा लिखेंगे, इज 136, ठीक है। और एंड 150, ये 150 किसके लिए, ये वेरिएबल y के लिए है, मतलब वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर हो गया आपका 150, तो 136 हो गया और ये 150 हो गया। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी ना। आगे चलो, आगे चलते हैं। द सम ऑफ, वापस सम ऑफ का मतलब ब्रैकेट, द प्रोडक्ट मतलब ये ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, वापस डेविएशन, डेविएशन मतलब डिफरेंस फ्रॉम मीन, मतलब वही हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, कितना दिया है 123। सो वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया डेटा में क्या दिया हुआ है। तो हमें एन मिल गया, एक्स बार मिल गया, वाई बार मिल गया, ये सारी चीजें मिल गई हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोला है, एक्स ऑन वाई पूछा है, क्या पूछा माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स ऑन वाई, तो बी एक्स वाई निकाला। नाउ व्हाट इज रिग्रेशन इक्वेशन, x on y, that is x minus x bar is equal to bxy y minus y bar. Just substitute values. तो x minus what is x bar? तो x bar क्या होगा, x bar होगा समेशन x अपॉन n। तो सबसे पहले अच्छा x bar तो ऑलरेडी गिवन था 25। ओके, तो x bar के प्लेस पे 25, bxy 0.82, y minus what is y bar 18, multiply x minus 25 0.82 y minus 0.82 मल्टीप्लाई बाय 18। कमेंट कमेंट बॉक्स में फटक से करो तो। होप दैट आप सब लोग मेहनत कर रहे हो माय डियर स्टूडेंट, अच्छे से हार्ड वर्क करो, इसे टाइम पास मत समझिए, आप लोगों के लिए वहां रिवीजन बनाया है, डू हार्ड वर्क और कमेंट करो 0.82 y माइनस 0.82 इंटू 18, दैट इज 14.676। सो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने मुझे काफी कमेंट किया था सर रिग्रेशन पे भी हमें रिवीजन वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ। ओके, सो ये -25 आपका राइट साइड में आ गया, सो +25 हो गया।
x इज इक्वल टू 0.82y। नाउ 25 में से माइनस करेंगे 14.76, 14.76 दैट इज 10.24, 10.24। सो ये आपका हो गया रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y का फाइनल आंसर। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इज दिस क्लियर? लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। सो माय डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में टोटल 11 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। दिस इज 6th नंबर, तो पेशेंसफुली आप करते जाइए। फ्रॉम द डेटा देर आर 7 पेयर्स, तो n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू हो गई 7। फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, ये आपको दिया गया है। समेशन एक्स आई माइनस 70, आप देख सकते हैं वाई आई माइनस 60। हमने कैसा पढ़ा था? हमने पढ़ा था समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ऐसे पढ़े थे राइट। बट यहाँ पे एक्स बार की जगह पे क्या दे दिया है? ये लोगों ने 70 दिया है। लेट अस सी हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सम्स। ऐसे सम्स में आपको क्या करना होता है हमारे डियर स्टूडेंट्स? ऐसे सम्स में हमें जो आपका ये एक्स आई माइनस 70 है, एक्स आई माइनस 70 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई आई माइनस 60 है। तो ऐसे सम में आप एज्यूम कर लोगे एक्स आई माइनस 70 को यू बोल दो या यू आई बोल दो। सिमिलरली वाई आई माइनस 60 को माय डियर स्टूडेंट्स अब वी बोल दो या वी आई, और इस पूरे सम को यू और वी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। इज दिस क्लियर? पूरे सम्स को यू और वी के टर्म्स में कन्वर्ट करो तो क्या बनेगा? ये आपका बनेगा समेशन यू माइनस 35, समेशन वी माइनस 7, समेशन यू स्क्वायर 2989, समेशन वी स्क्वायर 476, समेशन u इंटू वी 1064। इज दिस क्लियर? यह आपका हो जाएगा यू आई वी आई के टर्म्स में। नाउ लेट अस कंटिन्यू। देखो माय डियर स्टूडेंट मैंने जो बोला वो यहाँ पे आपको दिया गया है। नाउ आफ्टर दैट अब हमें क्या फाइंड आउट करना है माय डियर स्टूडेंट्स? अब हमें कैलकुलेट करना है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। तो लेट अस सी क्या क्या करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हमारे डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने सबसे पहले कोवेरियंस निकाल दिया, समेशन यूवी अपॉन एन माइनस यू बार वी बार। दिस इज यू बार वी बार, यू वी बार नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस यू बार इंटू वी बार, इट इज लाइक दिस। सो समेशन यू वी आप देख सकते हो हमें डेटा में दिया 1064, तो 1064 डिवाइड बाय एन, एन कितना था? 7। तो ये 1064 डिवाइड बाय 7 माइनस ये आपका u बार हो गया और ये आपका v बार हो गया। इज दिस क्लियर? और उसे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट कोवेरियंस इज 147। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब जो बी वाई एक्स होता है वही बी वी यू होगा। y के जगह v लिखना है, x के जगह u लिखना है। तो व्हाट इज बी वाई एक्स? दैट इज बी वी यू, एंड व्हाट इज बी एक्स वाई? बी यू वी। तो what is byx? Byx is covariance upon sigma square. तो covariance of uv upon sigma square at u। now अब उसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर देखो यहाँ साइड में हमने निकाल के दिया है। ये आपका u बार हो गया, ये v बार हो गया। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कैलकुलेट किया। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला? समेशन u स्क्वायर अपॉन n माइनस u बार का स्क्वायर। 402 आएगा, सिग्मा स्क्वायर v 67 आएगा। नाउ आप यहाँ पे पुट कर देंगे, यू विल गेट बी वाई एक्स, यहाँ पे बी एक्स वाई सिमिलरली 2.19 मिल गया। इतना करने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। दिस स्टेप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपने अज्यूम क्या किया था वो सोचो, क्या अज्यूम किया था माय डियर स्टूडेंट्स? हमने अज्यूम किया था यू आई इज एक्स आई माइनस 70। क्या अज्यूम किया था? ui is xi माइनस 70, और दूसरा हमने अज्यूम किया था vi इज इक्वल टू yi। yi क्या था? yi माइनस 60, yi माइनस 60। सो माय डियर स्टूडेंट्स यहां से आपको इक्वेशन ऐसे बनेगा u बार इज इक्वल टू x बार माइनस 70। सो व्हाट इज x बार? ये माइनस 70 इधर ले लो, तो यू विल गेट u बार प्लस 70
इज एक्स बार। तो ये आपको एक्स बार का फॉर्मूला मिला। एक्स बार हो जाएगा यू बार प्लस 70। सिमिलरली यहां से आपका वाई बार मिल जाएगा वी बार प्लस 60। ओके, सो एक्स बार और वाई बार हमें मिल गया। तो ये देखो, ये हो गया एक्स बार, ये हो गया वाई बार। तो यहाँ से आप एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करो। एक्स बार आ गया 65, वाई बार आ गया 59। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास बी वाई एक्स है, आपके पास बी एक्स वाई है, आपके पास एक्स बार है, आपके पास वाई बार है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। दैट इज वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। वैल्यू पुट करो और ये आपको y इक्वल टू के फॉर्म में आ गया y ऑन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस एक्स वाई बार। ये आपका x ऑन y का इक्वेशन होगा, जो कि आपको x इक्वल टू के फॉर्म में आ गया। सो क्वेश्चन का फर्स्ट टू पार्ट ओवर। दैट इज y ऑन x पता चल गया, x ऑन y। को रिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? स्मॉल r। तो स्मॉल r क्या होगा? स्मॉल r इज प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये बी वाई एक्स है, ये बी एक्स वाई, दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट 0.7884, ये क्वेश्चन में इसका स्क्वायर रूट दिया है, देखो। दैट इज 0.8879। तो ये आ जाएगा आपका 0.8879। पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव? तो आप देखो, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई जो आपने कैलकुलेट किया, दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। ऐसे सम्स को आप ध्यान से केयरफुली 2 टाइम 3 टाइम प्रैक्टिस करो। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिंग आउट 7 का फर्स्ट। ब्रिंग आउट द इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है वो राइट है कि रॉन्ग, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। सो ऐसे सम्स आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स में आ सकते हैं। ओके, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई 1.30 है, तो आर की वैल्यू 0.75 है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर एग्जाम में आया ट्रू और फॉल्स ये दिया गया है, तो आप क्या करोगे? आप चेक करोगे कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट रहा तो ट्रू और इनकंसिस्टेंट रहा तो फॉल्स। ओके, तो बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2 कैलकुलेट करो, 0.65 आएगा। ओके, और आर की वैल्यू क्या दिया है? 0.75। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2, इसका मॉड्यूलस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, मॉड ऑफ आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। तो आपने देखा ये था 0.65 और आर की वैल्यू है 0.75। तो ये 0.65 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ सिमिलरली 7 का सेकंड पार्ट, ब्रिंग आउट द इनकंसिस्टेंट अगेन। आपको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों 1.50 है, तो आर माइनस 0.9 होगा क्या? नो, क्यों? क्योंकि बी वाई एक्स पॉजिटिव है, बी एक्स वाई भी पॉजिटिव है, तो आर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे आर की वैल्यू निगेटिव दिया है, तो अगेन इट इज इनकंसिस्टेंट। सो क्या लिखोगे? कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। तो कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट निगेटिव दिया है, जो कि ट्रू नहीं है। तो ये क्या हो गया? अगेन इनकंसिस्टेंट हो गया। अगर बी वाई एक्स ग्रेटर देन जीरो है, बी एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो है, देन आर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। थर्ड पार्ट, मैंने 3 to 4 क्वेश्चन इसमें लिया है, जैसे आपको पता चल जाए। बी वाई एक्स 1.9 दिया है और बी एक्स वाई माइनस 0.25, इज इट पॉसिबल? नो, आइदर बोथ पॉजिटिव होना चाहिए या बोथ निगेटिव होना चाहिए। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के साइन कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकते। अगर बी वाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो बी एक्स वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर बी वाई एक्स लेस देन जीरो है, तो बी एक्स वाई भी लेस देन जीरो होगा। बट बी वाई एक्स ग्रेटर देन जीरो है और बी एक्स वाई लेस देन जीरो है, इट इज नॉट पॉसिबल। So either both positive or both negative. So again, it is inconsistent. Question number 4 in that part, bring out the inconsistent. Byx 2.6 है, तो bxy 1/2.6 हो सकता है क्या? So my dear students, we know that
कि बी वाई एक्स अगर ग्रेटर देन वन होगा देन बी एक्स वाई मस्ट बी लेस देन वन होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन वन है तो ये लेस देन वन होना ही चाहिए। इज दिस क्लियर? और दोनों का साइन सेम होना चाहिए, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, दोनों का साइन सेम होना चाहिए मतलब बी एक्स वाई बोथ पॉजिटिव होना चाहिए, बी एक्स वाई बोथ निगेटिव होना चाहिए। ओके, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, बोथ पॉजिटिव नहीं तो बोथ निगेटिव। एंड बी वाई एक्स अगर वन से बड़ा है तो बी एक्स वाई लेस देन वन होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट देख सकते हैं 2.6 जो कि ग्रेटर देन वन है और 1/2.6 लेस देन वन है, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। एंड बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई वन आ रहा है। इज दिस क्लियर? चलो लेट अस कंटिन्यू। तो ये मैंने आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे फ्यू क्वेश्चंस कराए। ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं, माय डियर स्टूडेंट डू इट प्रॉपर्ली। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल हमें 11 क्वेश्चंस करना है। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस सी फॉर द दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम्स। ऐसे सम्स को आप ज्यादा से ज्यादा करो। आपको यहाँ एक टेबल दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। टेबल के अंदर आपको दिया गया मीन, उसके बाद आपको दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह से आपको कॉलम दिए गए हैं और आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया ध्यान से देखो। नाउ व्हाट इज मीन? पहले तो टेबल को समझने की कोशिश करो। यहाँ मीन लिखा है तो मीन किसका मीन? एक्स का मीन। एक्स का मीन कितना है? 13, मतलब एक्स बार हो गया 13। फिर इज दिस क्लियर? मीन एक्स का, किसका मीन? एक्स का मीन। एक्स का मीन क्या था? एक्स का मीन 13 था माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक्स बार हो गया 13। फिर से वापस, अब वापस देखो ये मीन है। मीन किसका मीन? वाई का मीन कितना है? 17। तो वाई बार हो गया 17। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का कितना है? 3। तो सिग्मा एक्स हो गया 3, सिग्मा वाई हो गया 2। सो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन। होप दैट आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। नाउ आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको एक्स बार मिल गया, वाई बार मिल गया, सिग्मा एक्स मिल गया दैट इज 3, सिग्मा एक्स इक्वल टू 3, सिग्मा वाई मिल गया। ये सारी चीजें हमें मिल गई। नाउ आफ्टर दिस सिग्मा एक्स हो गया, ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट सिग्मा एक्स आपका हो गया 3, सिग्मा वाई 2 और आर। व्हाट इज आर? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब होता है आर। आर की वैल्यू कितना है? 0.6। तो हमें आर भी पता चल गया। नाउ एस्टिमेट एक्स, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू है 15। तो जब x फाइंड आउट करना होगा तो किससे आएगा? x ऑन y से। सेकेंड पार्ट, y फाइंड आउट करना है और x की वैल्यू 10 है, क्या यूज करोगे? y ऑन x। तो इनडायरेक्टली हमें x ऑन y और y ऑन x इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेट अस सी। तो ये सब डेटा हो गया। जब भी आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया रहे, मतलब जब भी आपको सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और आर दिया रहे, जब भी आपको सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और आर दिया रहेगा, ये तीनों गिवन होगा। सो माय डियर स्टूडेंट बी वाई एक्स का फॉर्मूला हो जाता है आर इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको बी वाई एक्स आ गया 0.4, बी एक्स वाई आर इंटू सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई 0.9। हाउ टू रिमेम्बर? देखो एक्स वाई है ना, तो ऊपर सिग्मा एक्स नीचे सिग्मा वाई, एक्स वाई है तो ऊपर सिग्मा एक्स नीचे सिग्मा वाई। तो आपको बी वाई एक्स आ गया, आपको बी एक्स वाई आ गया। नाउ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, एक्स वाई माइनस वाई बार, ये एक्स और वाई का इक्वेशन है माय डियर स्टूडेंट। सब्स्टिट्यूट करो और एक्स इक्वल टू के फॉर्म में रखो। ना एक्स इक्वल टू के फॉर्म में आ गया। आप इमीडिएट क्या करोगे? इमीडिएट आप एक्स ऑन वाई से वाई एक्स फाइंड आउट करो, है ना। एक्स फाइंड करना है, वाई की वैल्यू 15। तो हम लोग ये वाई की वैल्यू 15 यहाँ पे वाई के प्लेस पे डाल देंगे। इज दिस क्लियर? सो पुट, देखो यहाँ पे फॉर y इक्वल टू 15 आपको x की वैल्यू आ गई 11.2। ओके, ना उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? y ऑन x। तो y माइनस वाई बार, ये देखो ये y ऑन x आ गया। आपको x की वैल्यू कितनी दी है? 10। x की जगह 10 डालोगे, आपको y की वैल्यू आ गई 15.8। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझा होगा। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत प्रैक्टिस करो ऐसे सम्स की। ओके, लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, एन इंक्वायरी ऑफ 50 फैमिलीज। कितनी फैमिलीज है? 50।
तो 50 फैमिलीज मतलब n की वैल्यू हो गई माय डियर स्टूडेंट 50। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर on accommodation, that is X. So keep in mind expenditure on accommodation को X से दिखाया है एंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड को फूड एंड इंटरटेनमेंट को Y से दिखाया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कौन किसको बोला गया है। ओके क्या एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट का मतलब हो गया फाइंड। क्या फाइंड करना है, एक्सपेंडिचर ऑन फूड दैट इज X एंड इंटरटेनमेंट, सॉरी एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड इंटरटेनमेंट को Y बोला है। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया y। आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन दैट इज x इज 200, मतलब x की वैल्यू 200 है और आपको y फाइंड आउट करना है। और जब भी y फाइंड करना होगा तो हम इक्वेशन यूज करेंगे y ऑन x। क्लियर, y फाइंड आउट करना है तो y ऑन x। चलो अब आपको डेटा में क्या दिया है, देखो आपको समेशन एक्स दिया है, समेशन वाई दिया है और एन 50 है। ओके तो समेशन एक्स पता है, समेशन वाई पता है, एन पता है, तो व्हाट इज एक्स बार, समेशन एक्स अपॉन एन, वाई बार समेशन वाई अपॉन एन। ओके ना अब आपको सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, आर भी दिया है। अभी अभी मैंने आपको बोला माय डियर स्टूडेंट, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और आर ये तीनों दिया हो तो आप बी वाई एक्स में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आर इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स, तो आपको बी वाई एक्स मिल गया। ओके यहाँ पे हमें बी एक्स वाई निकालने की जरूरत है क्या, नो सर, क्यों, क्योंकि y माइनस वाई बार का ये y ऑन x का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो हमें y बार चाहिए, हमें x बार चाहिए, हमें बी वाई एक्स चाहिए। हमने x बार निकाला, हमने y बार निकाला, हमने बी वाई एक्स निकाल लिया। इज दिस क्लियर ना। अब यहाँ पे मैंने ये जो सम दिखाया है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज किया है। ओके ये जो हमने यहाँ यूज किया है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड। आप ये मेथड से जाओ और और हम लोग ये मेथड से जा सकते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x दैट इज y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो y माइनस 192 बी वाई एक्स दैट इज 0.2 x माइनस व्हाट इज x बार दैट इज 170। तो y माइनस 192 इज 0.2x माइनस, कम ऑन, तो सब लोग 170 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करो, फटाक से बताओ। वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में फटाक से डालो, दैट इज 34, एक्सीलेंट, माइनस 34। तो y इज इक्वल टू, हमें y इक्वल टू के फॉर्म में लाना होता है ना, y ऑन x जो है y इक्वल टू के फॉर्म में, माइनस 34 प्लस 192। सो माय डियर स्टूडेंट 192 में से आप 34 माइनस कर दो, कितना आएगा, 158। यस वेरी गुड, y इज इक्वल टू 0.2x प्लस 152। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, जो कि आपका हो गया y ऑन x का आंसर ना। यही चीज आप लोग माय डियर स्टूडेंट इस मेथड से भी कर सकते हो, जो कि आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड है। क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड में ये आपका ए का फॉर्मूला होता है, आपको ए मिलता है, क्या मिल जाता है, ए, ये ए की वैल्यू आ जाती है, ए की वैल्यू आ गई 158। और बाद में इसको बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशन। y इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, वहां पे आप पुट कर दो। आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको y इक्वल टू 158 प्लस 0.2 एक्स आया, 158, सॉरी यहाँ पे मैंने 152 लिखा है माय डियर स्टूडेंट, इट इज सिली मिस्टेक, इट इज 158। क्या आएगा यहाँ पे, 158, 192 माइनस 34 दैट इज 158। ये इक्वेशन हमें आ गया। ओके ना माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो चाहे आप ये मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आंसर सेम आता है ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स की वैल्यू दी है 200, तो एक्स के प्लेस पे 200 डाल दो। सो एक्स के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, 200, तो पुट एक्स इक्वल टू 200, वाई इज इक्वल टू 0.2 इंटू 200 प्लस 158।
So 200 multiplied by 0.2. So 0.2 multiplied by 200, that is 40. तो 40 प्लस 158, दैट इज 198। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 198। सो फाइनल आंसर आपको वर्ड में लिखना है। देयरफॉर द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट इज रुपीज 198 व्हेन अकोमोडेशन इज रुपीज 200। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे हमने स्टेप 3 में दो मेथड बताए। आइदर आप इस मेथड से सम को करो या इस मेथड से करो, किसी भी मेथड से आप इस सम को कर सकते। होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टोटल हमें 11 करना है, दिस इज द सेकंड लास्ट। वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब v एट x 9 है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, जैसे वेरिएंस दिया रहा है आप इमीडिएट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x? दैट इज अंडर रूट वेरिएंस, दैट इज अंडर रूट 9, दैट इज 3। regression equation, yes, this is very 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 important sum, very 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 important sum my dear students। रिग्रेशन इक्वेशन, आपको ये दो इक्वेशन दिया गया है, ओके। बट हमें ये नहीं मालूम कि कौन सा एक्स ऑन वाई है और कौन सा वाई ऑन एक्स। नाउ फाइंड आउट, फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ इंफॉर्मेशन। पहला, मीन वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन? मीन का मतलब एवरेज। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एक्स बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वाई बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आपको आर पूछा गया है, आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मतलब सिग्मा वाई पूछा है। तो आप देख सकते हैं आपको क्या क्या पूछा गया है। चलो, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन पता हो तो एक्स बार और वाई बार निकालने का सबसे बेस्ट ट्रिक है, इन दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू मिलेगी। एक्स की वैल्यू को एक्स बार बोलते हैं, वाई की वैल्यू को वाई बार बोलते हैं, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, तो यहाँ पे हमने वेरिएंस ऑफ एक्स 9 दिया था, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ गया था? देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 3 आ गया था। तो वेरिएंस 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हुआ। ये हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे दिखा दिया है, ओके। चलो लेट्स कंटिन्यू। सो माय डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन। पहला पॉइंट, टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर दिस। तो इसमें से हमने क्या किया, हमने ये 66 को ये साइड ले लिया, दैट इज इक्वेशन 1। और सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन ये है। दोनों को क्या करोगे? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। तो ये 8 है ना, तो 8 में 5 का मल्टीप्लाई, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में किसका मल्टीप्लाई करो? 5 का। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 40x, 8 5 जा 40, 10 5 जा 50, 66 5 जा 330। सो यू विल गेट, आपको क्या मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? ये आपको आ जाएगा न्यू इक्वेशन, दैट इज 40x माइनस 55 इक्वल टू माइनस 330। और ये वाला एज इट इज कॉपी कर लिया। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट्स। 40x गेट कैंसल, यू विल गेट माइनस 32, y इज माइनस 544, y की वैल्यू आ गई 17। देयरफॉर y इज इक्वल टू 17। नाउ ये y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स? ये y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। तो वी गेट 8x माइनस 10 इंटू 17 इक्वल टू माइनस 66। और जब आप ये सॉल्व करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, आपको x की वैल्यू आ गई 13, ओके। देयरफॉर ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे, दिस लाइन इज कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी टू राइट, रिमेंबर इट। ये लाइन लर्न कर लो। क्या है ये लाइन? आपको ये लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि सिंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन इज एक्स बार वाई बार, मतलब ये एक रिग्रेशन लाइन है एक्स ऑन वाई, ये दूसरी रिग्रेशन लाइन है y ऑन x। ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका कोऑर्डिनेट x, y होगा, और इसी x को x बार और y को हम y बार बोलेंगे, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको x बार की वैल्यू आ गई 13, x बार जो कि मीन वैल्यू ऑफ x है 13 हो गया, और y बार जो कि मीन वैल्यू ऑफ y है, मीन वैल्यू ऑफ यहाँ पे y आएगा, मीन वैल्यू ऑफ y है जो कि 17 हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आपका ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, मीन वैल्यू ऑफ x एंड y। नाउ सेकंड पार्ट हमें r चाहिए।
नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर? तो आर का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो उसके लिए आपको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई पता होना चाहिए। लेकिन बी वाई एक्स कहाँ से मिलेगा? ये आपको रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से पता चलेगा। और बी एक्स वाई कहाँ से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। बट हमें x ऑन y और y ऑन x में तो इक्वेशन दिया है, बट हमें यही नहीं पता कि कौन सा x ऑन y है और कौन सा y ऑन x। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा x ऑन y है और कौन सा y ऑन x है। वो कैसे करेंगे? लेट अस सी। सो देखो, अब हम क्या करेंगे? देर आर टू इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन को हमने अज्यूम कर लिया कि ये y ऑन x है। क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया। तो लेट अस अज्यूम दिस इक्वेशन इज y ऑन x। भी माय डियर स्टूडेंट्स, ये y ऑन x है तो आपको y इक्वल टू के फॉर्म में लाना होगा ना। तो ये -10y है, इसको चुपचाप राइट साइड में ले लो। तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 8x प्लस 66 इज इक्वल टू 10y। देखो, इज दिस क्लियर? तो 10y इज इक्वल टू 8x प्लस 66। तो हमें y इक्वल टू के फॉर्म में लाना है, तो ये 10 अपॉन में चला जाएगा दोनों के। तो वी गेट y इज इक्वल टू 8 अपॉन 10x प्लस 66 अपॉन 10। नाउ इसको 2 से कैंसिल करो। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 2 से कैंसिल करोगे 33, ये 2 से कैंसिल हो गया 5। सो आपको y इक्वल टू आ गया 4 अपॉन 5x प्लस 33 अपॉन 5। ये हो गया y। इज इट क्लियर? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको आप क्या करोगे? इसको आप कंपेयर करोगे किससे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m स्लोप होता है और इसी m को हम बोलते हैं, ये कौन सा इक्वेशन है? y ऑन x ना। तो इसी m को बोलेंगे बी वाई एक्स। तो y इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे। ओके, क्योंकि ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है और यहाँ पे m स्लोप है और यहाँ पे स्लोप को बोलेंगे बी वाई एक्स। होप दैट आपको समझ में आया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो x का कोइफिशिएंट है वो हो गया बी वाई एक्स। तो यहाँ पे आपको आ गया बी वाई एक्स इज इक्वल टू 4/5। Is it clear? Let us see. Now the next part. What is the next part? Regression. जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसको हम क्या अज्यूम करेंगे? नाउ लेट अस अज्यूम द सेकंड इक्वेशन इज x ऑन y। दूसरे वाले को x ऑन y अज्यूम कर लिया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, x ऑन y अज्यूम किया तो x इक्वल टू के फॉर्म में होगा, तो ये -18y इधर आ जाएगा। तो वी गेट 40x, क्या आ जाएगा बोलो? 40x इज इक्वल टू 18y प्लस 214। तो व्हाट इज x? ये 40 को अपॉन में ले लो। तो x आ जाएगा 18/40y प्लस 214/40। अभी 2 से कैंसिल करोगे तो ये 2 9 जा ये 20। 2 से कट करो ये 20, ये 2 से कट करोगे 107। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको x आ गया दिस। अब इसमें जो y का कोइफिशिएंट है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। जो y का कोइफिशिएंट है उसे हम बोलते हैं बी एक्स वाई। तो यहाँ पे बी एक्स वाई क्या हो गया? 9/20। सो अब आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? अब आपको बी एक्स वाई मिल गया। तो आपको क्या करना है? आपको आर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? आर। तो ये आर का फॉर्मूला है, तो आर के फॉर्मूले में हम डालेंगे। ध्यान दीजिएगा और आप देख सकते हो, देखो बी वाई एक्स पॉजिटिव है और बी एक्स वाई भी क्या है? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव होंगे, नहीं तो दोनों निगेटिव होंगे। माय डियर स्टूडेंट, इज इट क्लियर एवरीवन? होप दैट आपको ये सब चीज अच्छे से समझ में आई होगी। सो देयरफॉर व्हाट इज आर? आर इज प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, so which is equal to plus minus under root. What is by(x)? 4/5. What is bxy? 9/20. So which is equal to plus or minus under root. What is 4 9 ja? That is 36. What is 25 ja? 100. So we get plus minus 6/10. Okay. So now since byx and bxy both positive, therefore r की वैल्यू क्या हो जाएगी? Therefore r is
पॉजिटिव। तो व्हाट इज आर? आर इज इक्वल टू पॉजिटिव 6/10। तो आर की वैल्यू हो गई 0.6। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि आर की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की। नाउ थर्ड पार्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई? तो देखो, थर्ड पार्ट, आर की वैल्यू 0.6, बी वाई एक्स भी आपको पता है। व्हाट इज बी वाई एक्स? बी वाई एक्स हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 4/5। बी एक्स वाई 9/20 था। और अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है? स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेट किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज 3। इज दिस क्लियर? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है 3। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस यूज द फॉर्मूला। जब भी मैंने आपको बोला था, जब भी आपको बी आर दिया रहे, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये तीनों चीज हो, तो आप बी वाई एक्स नहीं तो बी एक्स वाई किसी के भी फॉर्मूले का यूज करो। चलो बी वाई एक्स अगर यूज करते तो व्हाट इज बी वाई एक्स? आर इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स। आप ये फॉर्मूला यूज कर लो या बी एक्स वाई का यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ना, व्हाट इज बी वाई एक्स? 4/5। व्हाट इज आर? 0.6 ना, या 6/10 लिख दो। 0.6 लिखो या 6/10 लिखो, कोई फर्क नहीं। चलो 6/10 लिखते हैं। 6/10 सिग्मा वाई, व्हाट इज सिग्मा एक्स? दैट इज 3। लेट अस सिंप्लीफाई। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6। अब बाद में 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो क्या मिला? हमें मिला 4/5 इज इक्वल टू 1/5 सिग्मा वाई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 5 5 गेट कैंसल। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एट वाई क्या मिला? 4। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई? अंडर रूट, सॉरी, सिग्मा वाई हमें मिल गया 4। दिस इज द फाइनल आंसर। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ गया 4। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये ऑल 3 पार्ट सॉल्व किए। दिस सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। ऐसे टाइप की सम्स की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट सम ऑफ द रिवीजन लेक्चर। नाउ फॉर 50 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है? 50। तो n की वैल्यू हो गई 50। ओके, of a class, regression equation of marks in statistics, that is x, on marks in accounts। तो देखो, x, ध्यान से पढ़ो, x on y। तो ये आपको x on y दिया है माय डियर स्टूडेंट। ये क्या हो गया? x on y। तो x on y देखो, x on y इज दिस। ओके, क्लियर हो गया आपको? ये x on y है। चलो, तो हमें ये चीज पता चल गया कि n क्या है, और हमें एक्स और वाई का इक्वेशन दिया, ये हमें पता चल गया। चलो आगे पढ़ो। वेरिएंस ऑफ मार्क्स, वेरिएंस ऑफ मार्क्स मतलब वी। ओके, वेरिएंस ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9/16। 9/16 वेरिएंस, वापस वेरिएंस किसका? अकाउंटेंसी, दैट इज वाई। तो आपको क्या गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको गिवन हो गया कि वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू 9/16 वेरिएंस ऑफ वाई। नाउ व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स? दैट इज सिग्मा एक्स का स्क्वायर 9/16 सिग्मा स्क्वायर ऑफ वाई। तो आप समझ सकते हो, ये आपको गिवन हो गया। ओके, ना, ये सिग्मा स्क्वायर वाई को अपॉन में ले लोगे, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर इज 9/16। तो कैन वी राइट सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 9/16 को क्या लिख सकते हैं? 3/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसल। सो माय डियर स्टूडेंट, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई मिल गया 3/4। तो होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स ये एरिया आपको समझ में आ गया। ये हमने फाइंड आउट कर लिया गिवन से। ओके, सो आपको एक्स ऑन वाई दिया है, आपको एन दिया है, और सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब आर फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज आर?
आर इज बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा, राइट। लेट अस सी कैसे आएगा। चलो, व्हाट इज द रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, तो ये एक्स ऑन वाई है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक्स ऑन वाई को हमें एक्स इक्वल टू के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, देखो, दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू के फॉर्म में लेंगे। तो 5x को ये साइड ले लो, तो 5x इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस 180। ओके, तो 5x इज इक्वल टू 3y प्लस 180। ये 5 कहाँ चला जाएगा, 5 अपॉन में चला जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5y प्लस 180 अपॉन 5। और अभी अभी मैंने रिवीजन लेक्चर में अभी अभी पढ़ाया था प्रीवियस सम में कि y के बाजू में जो होगा वो क्या हो जाएगा, यस कम ऑन, वो हो जाएगा बी एक्स वाई। तो आपको यहाँ से बी एक्स वाई मिल गया 3/5। ओके, इज इट क्लियर। तो आपको बी एक्स वाई क्या मिल गया हमारे डियर स्टूडेंट्स, 3/5। हमें क्या फाइंड करना है, आर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अब आपको बी एक्स वाई 3/5 मिल गया। हमें सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया, जो कि 3/4 है। हमें आर चाहिए, तो हम बी एक्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। व्हाट इज बी एक्स वाई, आर इंटू सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई। ये बी एक्स वाई का फॉर्मूला है। तो बी एक्स वाई के प्लेस पे आ गया 3/5, और सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई के प्लेस पे आ गया 3/4। होप दैट आपको समझ गया होगा। थ्री थ्री गेट कैंसल, थ्री थ्री कैंसल कर दो, या ये 3/4 को आप लेफ्ट साइड में ले लो, 4/3 हो जाएगा। थ्री थ्री कट, वी गेट आर इज 4/5। एंड व्हाट इज 4/5, 0.8। तो आर की वैल्यू आ गई 0.8। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने 11 सम कंप्लीट किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिग्रेशन चैप्टर में मैंने टोटल 11 सम्स पढ़ा है, एंड ऑल दिस 11 सम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये 11 सम्स अच्छे से समझ गया, तो आई विल गिव यू गारंटी दैट कि आप एग्जाम में आए हुए सम्स को कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। ये ऑल 11 सम्स की प्रैक्टिस आप अच्छे से करें। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप 12th स्टैंडर्ड्स के ज्यादा बच्चों को ये शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सारे बच्चों का भला हो। कर भला तो हो भला, अगर आप भला करेंगे तो आपका भला जरूर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।